بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات اور خاص طور پہ راولپنڈی سے بھی کچھ اہم خبریں آپ سے شیئر کرنا ہے، کیونکہ حالات و واقعات بدلتے جا رہے ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق اب کچھ آنکھیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ 22 اگست سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ 22 اگست کو عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے، اور اس میں ایک ریکویسٹ کی تھی اور اس ریکویسٹ کو مانا گیا تھا، جلسہ منسوخ کر دیا تھا، اور اس کے بدلے میں ایک گارنٹی دی تھی، ضمانت دی تھی کہ اگلا جلسہ آپ 8 ستمبر کو کر لیں، اور 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے نہیں روکا جائے گا۔ اور اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، ایک دوسرے کو دھمکایا جا رہا تھا، ڈرایا جا رہا تھا، لیکن آج اس پہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی اور این او سی جاری کر دیا۔ نہ صرف این او سی جاری کیا بلکہ باقاعدہ طور پہ ایک انتہائی کلرفل رنگین روٹ پلان بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیا گیا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہ اب آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ کوئی 41 مختلف شرائط عائد کی گئی ہیں۔ شرائط کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، پہلے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بذریعہ موٹر وے آنے والوں کے لیے الگ نقشہ جاری کیا گیا ہے، اور پنجاب سے بذریعہ جی ٹی روڈ آنے والے کارکنوں کے لیے الگ روٹ جاری کیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی مری کے لیے بھی الگ الگ روٹ پلان دیے گئے ہیں، اور دوران جلسہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، اور جلسے کا آغاز 4 بجے جبکہ اختتام 7 بجے ہوگا۔ جلسے کی اجازت ہوگی، تاہم کسی قسم کے دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اجازت صرف 8 ستمبر کے لیے ہے۔ منتظمین اسی رات کارکنان کی واپسی یقینی بنائیں گے، اور آرگنائزر جلسے کی انٹرنل سیکورٹی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ریاست مخالف یا مذہبی منافرت پر مبنی تقاریر یا نعروں کی اجازت نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جلسے کے شرکاء، کارکن، رہنما اور جلوس جو ہے وہ راولپنڈی کے قریب بھی نہ آئے، اور راولپنڈی یعنی کہ اڈیالہ جیل، یعنی کہ جو مال روڈ ہے، یعنی کہ کنٹ ایریا، اس کے آس پاس بھی نہ آئے، اور ہاکی اسٹیڈیم کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک دلچسپ روٹ ہے اور انتظامات کیے گئے ہیں، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو اجازت دے دی گئی ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا، اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر مزاحمت بھی ہوگی، لہٰذا یہ تو ہوئی پہلی اچھی خبر۔ دوسری اچھی خبر ہے یہ عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں تھیں، 6 مقدمات اور 1 مقدمات، 7 مقدمات تھے۔ ان 7 مقدمات میں مجموعی طور پر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت 19 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم تھا، لیکن پیش نہیں کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے اس مقدمے کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ انہیں پیش کیا جائے، لیکن انہیں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف تو عدالت کہتی ہے اور انہیں پیش نہیں کیا جاتا، عمران خان ہو یا بشرا بی بی ہو، ویڈیو لنک کے ذریعے اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، لیکن دوسری جانب جب حکومت کو ضرورت ہو اور 2 نمبر مقدمات قائم کرنے ہوں اور 9 مئی کے مقدمات میں پھنسانا ہو، تو جج صاحب کو موبائل بھی دیا جاتا ہے، اور جج صاحب کو فوری عمران خان صاحب کے ساتھ نمبر بھی ملوا دیا جاتا ہے، اور وہ واٹس ایپ پہ عمران خان صاحب کی بات بھی کروا دی جاتی ہے، حاضری بھی لگا دی جاتی ہے، لیکن اسے لاہور ہائی کورٹ نے پھر ان تمام اس کارروائی کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کسی عدالتی حکم کے بغیر ہی اور پرائیویٹلی ایک واٹس ایپ پہ رابطہ کروا دیا گیا عمران خان کا اور انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج کا، تو لہٰذا وہ ساری کارروائی غیر مؤثر ہو گئی تھی۔ لیکن یہاں پہ دلچسپ بات ہے کہ انہیں پیش نہیں کیا جا رہا، جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور مقدمہ تھا، اور وہ عمران خان صاحب کی جیل میں ملاقات نہیں کروائی جاتی ان کے وکلا سے، اور وہ وکلا جو کہ عمران خان صاحب کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں توہین عدالت کی درخواست تھی جیل انتظامیہ کے خلاف،
जेल इंतज़ामिया ने भी एक दरख्वास्त दायर की है अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए। तो लिहाजा ये दोनों मुकदमात जो हैं यकजान कर दिए गए हैं और इनको क्लब करके अब ये समाअत होगी 13 सितंबर को, और इसमें इमरान खान और जेल इंतज़ामिया के दरमियान तय होने वाले SOPs का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया है। सरकारी वकील ने बताया कि जनाब ये सारी चीज़ें हम सामने रख रहे हैं, तो इसका जायज़ा लिया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सरदार एजाज इसाक साहब ने कहा फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिया है। अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त जेल इंतज़ामिया के खिलाफ और उसका जवाब दोनों जो है वो 13 सितंबर तक ये सुना जाएगा। इसके बाद आते हैं बड़ी खबर की तरफ जी, जो कि बहुत ही बड़ी खबर, वो है इमरान खान साहब ने कल बहुत ही सख्त तरीन गुफ्तगू की है, और उन्होंने न सिर्फ सख्त तरीन गुफ्तगू की बल्कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ डिज़ास्टर हुआ और मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो कि हमसे कभी भी बेहतर नहीं थी, लेकिन उससे भी हम सीरीज हार गए, और उन्होंने कहा कि दुनिया हमारा मजाक बना रही है, हमारा मजाक उड़ा रहा है कि बांग्लादेश ने हमें फेंटा लगा दिया है और इससे नीचे हमारी क्रिकेट गिर नहीं सकती। और अक्टूबर 21 में हमने भारत को 10 विकेटों से हराया था, और मोहसिन नकवी के पास कोई तजर्बा नहीं, इसके पास कोई काबिलियत नहीं, इनको ऊपर से लाया गया, और जिन्हें चेयरमैन PCB बनने का शौक या उनकी हॉबी थी। इमरान खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की सिर्फ एक काबिलियत है, और वो है कि इसे जनरल आसिम मुनीर पसंद करता है, और इस मर्तबा भी मुल्क में तारीख की सबसे कम तरीन सरमायाकारी हुई और हुक्मरान कर्ज पर कर्ज लिए जा रहे हैं, जिससे महंगाई का नया तूफान आने वाला है। ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून ममालिक में हैं। आज बता रहा हूं कि मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है, और मुल्क इनकलाब की तरफ जा रहा है। इन्हें 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से जाग जाना चाहिए था। अब ये सुप्रीम कोर्ट का बेड़ा गर्क करने लगे हैं कि इलेक्शन फ्रॉड सामने ना आ जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि दुबई में तारीखी सरमायाकारी पाकिस्तानियों ने गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान की, और तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी सरमायादार सनतकार अपना बिजनेस दुबई में ले जाकर अपनी कंपनियां रजिस्टर करवा चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि फैसला साजों के पास कोई अकल नहीं है, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। फैसला करने वालों के पास ना अकल है और ना इनके पास अखलाकियात हैं। और उन्होंने फिर आसमा जहांगीर वाली बात को दोबारा से याद किया और डफर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद 75 साल की औरत और कैंसर की सर्वाइवर हैं, इसे जेल में रखा हुआ है, और मुझे सबक सिखाने के लिए 7 माह से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। इनसे ज्यादा बुज़दिल कोई और हो नहीं सकता। मुझे बताया जा रहा है कि ताकतवर के सामने खड़ा होने की जुर्रत कैसे की। ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। इमरान खान साहब ने कहा कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा, मगर वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। 8 सितंबर को कौम अपनी आज़ादी के लिए बाहर निकले, और ये आपको गुलाम बना रहे हैं। अब जजिस को धमकियां दे रहे हैं कि सरगोदा के जज को उठाकर ले गए। कभी ऐसा जुल्म नहीं देखा जो आज किया जा रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI ना होती तो वहां भी इतना ही बड़ा क्राइसिस होता। इसका हल डंडे और बंदूकों में नहीं है। हल ये है कि उनके मुंतखब नुमाइंदों को, मुंतखब लोगों को आगे आने दें। बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ रहे हैं और हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मेंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत खतरनाक हो रहा है, और हमारी आंखों के सामने ईस्ट पाकिस्तान जो है वो ढाका बन गया, और इस वक्त ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं ढाका में अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा था जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। इसका हल यह है कि बलूचिस्तान लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता और वहां गुर्बत है। मुल्क भर में हकीकी लोकल बॉडीज के इलेक्शन की जरूरत है, और NFC वार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे आवाम तक नहीं पहुंचती, बल्कि वडेरे हुक्मरान जो है वो खा जाते हैं। इंशाअल्लाह जब भी हमारी हुकूमत आएगी सबसे पहले लोकल बॉडीज इलेक्शन कराएंगे, जिसका प्लान बना रखा है। इस वक्त मुल्क में डायलॉग की जरूरत है। हमें कहते थे कि TTP हमारी वजह से है, तो फिर
BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है? अब ये क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी का कह रहे हैं, आपने वहां जाकर दहशतगर्दों TTP पर हमले भी किए। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए 3 सिमत होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक कितना फर्क पड़ा? इमरान खान साहब ने कहा कि खुफिया इदारों का, इंटेलिजेंस इदारों का काम होता है कि वो दहशतगर्दी खत्म करें, लेकिन इंटेलिजेंस इदारों को मुल्क की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने पर लगा दिया गया। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह और दो टोक अंदाज में ये बात की है। और उन इमरान खान ने जो बलूचिस्तान की खास तौर पर सूरत हाल बताई है, वो मैं आपको बता दूं कि वो सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। और सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वो इंतहाई हसास तरीन ट्वीट है, और वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि 70 और 71 से पहले के हालात थे मशरकी पाकिस्तान में। मुझे खौफ आ रहा है कि वो उसके अल्फाज जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही दिल दुखा देने वाले हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ उसको। उससे पहले एक और अडयाला जेल में जी अलकादर ट्रस्ट जो रेफरेंस है उसकी समाअत हुई, और उस समाअत में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी तो थे ही, और उनके वकील उस्मान गिल और चौधरी ज़ोहर अब्बास थे। और इसमें तफ्तीशी मियाँ उमर नदीम पर जिरह की गई, और अदालत ने बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त पर अहकामात जारी किए, क्योंकि बुशरा बीबी ने बर्रियत की दरख्वास्त दी थी और उस पर दलाइल हो गए थे और उस पर फैसला महफूज कर लिया था। तो जो अब एहतसाब अदालत के जज जावेद नासिर राना साहब ने यह कहा है कि बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला रेफरेंस के फैसले के साथ ही सुनाया जाएगा, और अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसला अभी नहीं सुनाया जाएगा। अगर आज सुना दिया जाता तो फिर इसका मतलब बड़ा क्लियर था कि ये इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था, और जज साहब के माइंड का भी पता चल जाना था। तो बहरहाल ये सूरत हाल तो है अदालत की। अब मैं ज़रा सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात आपको बताता हूँ जी। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मेरा इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार किया, जो मेरे लिए हैरत का बायस है, क्योंकि मैं पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका हूँ और इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहने का कोई इरादा नहीं रखता। वो समझते हैं कि वो मुझे मना लेंगे, मेरी राय बदलने पर आमादा कर लेंगे और अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। बलूचिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगें, तस्लीम करें कि आपने उनके प्यारों को छीन कर उनके दिल दुखाए हैं। सामी और महरंग से माफ़ी मांगे कि आपने उन्हें इस वक्त मारा जब वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते थे। और मैं सिर्फ अख्तर मेंगल नहीं हूँ, मैं इस अवाम का हिस्सा हूँ। जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगे तो आप मुझसे भी माफ़ी मांग लेंगे। मुझे किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे इस फैसले पर मजबूर किया है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने पर तैयार नहीं है। मैं पाकिस्तान में नहीं था और ख़ुद को इस बोझ से निजात दिलाने के लिए आया हूँ जो महीनों से मेरे ऊपर था। अब मैं आज़ाद हूँ। उम्मीद है कि बाकी लोग भी जल्द इस हकीकत का इदराक कर लेंगे। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मैं अब परवाज़ में हूँ और अलविदा पार्लियामेंट। शायद हम उस वक्त मिलें जब कानून की हुक्मरानी कायम हो। ये बहुत ही खतरनाक और ख़तरनाक ट्वीट है और हसास तरीन मामला है। अगर मामले को ये न संभाला गया तो फिर सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। इसलिए हमारी भी हाथ जोड़ कर ये इस्तदा है कि बलूचिस्तान में ताकत के बजाय वहाँ पे डायलॉग शुरू किया जाए और हकीकी नुमाइंदों के सुपुर्द कर दिया जाए वहाँ का इख्तदार और इख्तियार। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।